दोस्तों, शेख हसीना ने कहा था बांग्लादेश में यूएस को एक बेस बनाना है। इतना ही नहीं, उसके बाद टाइम एंड अगेन कहा जा रहा है यहाँ पे जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है उसमें बाइडेन प्रशासन का हाथ है। ऐसे ही नहीं, यूनुस को लाके बैठाया गया है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है, ये जो अब तक कहीं ना कहीं वर्जन चल रहा है, अब इसको यूएस से भी कंफर्मेशन आता हुआ मिल रहा है। यूएस में भी अगर आप देखें तो माइक बेंस के द्वारा, माइक बेंस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में ट्रंप के पहले टर्म में काम किए थे और यूएस को मिलिट्री बेस बांग्लादेश में बनाना था, साथ जो कि हसीना ने रिफ्यूज किया। इसके सिवा पूरा का पूरा जो कार्यक्रम हुआ है वो कैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इसमें नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का क्या रोल है, उसमें भी जो रिपब्लिकन आर्म है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उनके द्वारा ये किया गया है। ये बात बहुत ही क्लियरली सामने आ रही है। और यहां पे अगर आप देखें तो ये टकर कार्लसन के पॉडकास्ट में बड़े ही, अगर आप देखें तो क्लियरली इन्होंने समझाया भी है। अब दोस्तों, यहाँ पे माइक बेंस कौन है आप जानना चाहेंगे। देखिए, अगर ये पॉडकास्ट आज से 1 महीने पहले होता तो हम में से कोई भी इस पे चर्चा भी नहीं करता, लेकिन माइक बेंस बड़े खास व्यक्ति हो गए हैं। अभी जो पूरा यूएस में यूएस एड के खिलाफ प्रोग्राम चल रहा है उसका खुलासा माइक बेंस ने ही इसी टकर कार्लसन के शो पे किया था, जिसको इलॉन मस्क ने भी अफर्म किया था, और उसके बाद यूएस एड वाला कार्यक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट से लेके बाकी अखबार हर जगह कवर किया जा रहा है कैसे एक एक्स यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, उसने कैसे यूएस एड पे अटैक करवाया। कौन है ये आदमी, सबको इसके मतलब इसको जानना चाह रहे हैं आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो गए हैं। अब दोस्तों, इन्होंने बांग्लादेश पे खुलासा किया है। क्या कहा है आपको मैं कुछ अंश पॉडकास्ट का सुनाना चाहूंगा। टकर कार्लसन शो को इसका क्रेडिट जाता है, तो जरा आप ध्यान से सुनिए। It really is vital to U.S. national interests to build that military base in Bangladesh to counter Chinese influence, and the Bangladeshi prime minister doesn't want to do it. And so our foreign policy planners decide we need to do regime change. And whether or not you agree that's a good or an evil thing to do, I'm not even weighing into the morality of it. What if it is the declared or discrete policy of the U.S. government, the State Department and the White House and the National Security Council all agree this government, we should pursue regime change, all options to destabilize that country in order to weaken the existing government and to build up our network of democratic institutions and activists in order to either win the next election or in order to, do a color revolution style, ousting where the prime minister has to flee in a helicopter. आपने सुना जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कैसे एक कलर रिवॉल्यूशन करने का प्लान किस प्रकार से यूएस से बना, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि उस बेस की आवश्यकता यूएस को थी। और एक अंश आपको सुनाऊंगा, जरा वापस ध्यान से सुनिए, बाकी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे अभी। In this case, in Bangladesh, and these leaked documents from the Gray Zone show this in gratuitous detail, is that the National Endowment for Democracy's Republican arm, the International Republican Institute, they have 4 core forces, but 2 of them are political branches. There's the NDI, the National Democratic Institute for Democrats, and there's the IRI, the International Republican Institute for Republicans. And what the IRI submitted to the State Department in 2019, 2020, after they got walloped trying to back the Bangladeshi National Party in the recent past election, was a plan to destabilize Bangladesh politics. That's a direct quote, destabilize Bangladesh politics. By working with, they listed 170 pro-democracy activists, 304 key informants, and then they did a baseline assessment of the different ethnic groups and cultural cleavage points that they could exploit in order to effectively, either destabilize the country's politics or prop up the political alternative. And in the process of doing that, they sought the LGBT population, two Bangladeshi ethnic minority groups, and young students and student groups who had already been protesting earlier that year because. दोस्तों, बड़ा ही डिटेल्ड ये पूरा का पूरी कहानी जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो इन्होंने जिसका रेफरेंस दिया है इस पॉडकास्ट में वो है दी ग्रे जोन। दी ग्रे जोन में मैंने फिर देखा किस आर्टिकल की बात हो रही, तो यहाँ पे बड़े ही डिटेल में बताया गया है कुछ लीक्ड फाइल्स के हवाला देते हुए कि कैसे कोवर्ट यूएस गवर्नमेंट प्लॉट था जिसके द्वारा बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं माइक बेंस जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने ये पॉडकास्ट दिया है टकर कार्लसन शो पर, आपको जानना होगा ये आज काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। इलॉन मस्क
ने इनके खुलासों पे काम किया है और यूएसएड की तो दुकान बंद हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों एनईडी के बारे में भी, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिसकी यहाँ बात हो रही है, उसके बारे भी इलॉन मस्क ने कुछ कह दिया, यानी उनकी नजर अब एनईडी पर भी बन चुकी है और इसके साथ इनका भी जल्दी भांडा फूटेगा। क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में इस आर्टिकल के बेसिस पे, जो वो पॉडकास्ट का बेस है, जरा जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले किस संस्था की बात हो रही है वो अगर आप देखें तो IRI है। ये दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी की सब्सिडरी है फॉर नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, NED। वैसे ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं एक बात, ट्रंप रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो वो अलग हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को ही झकझोर दे रहे हैं। अमेरिका में दोस्तों डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, सब मिलके यही रिजीम चेंज ऑप्स आज तक चलाते रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोवर्ट इंटरफेरेंस चलता रहा है। ट्रंप का कहीं ना कहीं जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वो ओवर्टली कह रहे हैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे पनामा चाहिए, मुझे कनाडा चाहिए। तो यहाँ पे वो कोवर्ट गेम जो है ये लोग जो खेल रहे थे वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे दोस्तों IRI सबसे पहले जान लीजिए नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, उसी की ये एक सब्सिडरी है। और दोस्तों इन्होंने कई रिजीम चेंज ऑपरेशंस ग्लोबली किए हैं। इसको बनाया ही गया था, अगर आप देखें NED की हम बात करें तो CIA डायरेक्टर विलियम केसी ने इसको बनाया था 40 साल पहले। कारण क्या था, CIA चर्च के द्वारा रिजीम चेंज ऑपरेशंस कुछ जगहों पे कर रहा था और वो पकड़ा गया था, डेटा वगैरह लीक हो गया था। आज भी विकीलीक्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे याद है मैंने किसी वीडियो में शेयर भी किया है वो डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद उनको लगा कि CIA ये काम ना करे, इसके लिए किसी अन्य संस्थाओं को बनाया जाए, तो इसके लिए नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी बनाया गया था। यहाँ पे दोस्तों IRI ने अगर बांग्लादेश की बात करें तो मिलियंस खर्च किए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को कोच किया है और जो बांग्लादेश के सोसाइटी है उसको स्टडी किया है, उसमें क्या क्लीवेजेस हो सकते हैं, क्लीवेजेस यानी गैप्स जिसमें के द्वारा आप सोसाइटी को तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में, वो आइडेंटिफाई किया गया है और उसके बाद रिजीम चेंज नेटवर्क ने पूरा खेल किया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये गार्डियन का आर्टिकल है, आज का नहीं 2004 का आर्टिकल है। ये तब का आर्टिकल है जब इस प्रकार से फ्रंट फुट पे दूसरे देशों में इंटरफेयर करना बुरा नहीं माना जाता था। ये बड़े ही इन्होंने द गार्डियन ने मतलब विद प्राउड इसको प्रेजेंट किया कि देखिए कैसे यूएस कैंपेन रहा, कीव में जो टर्मोइल हुआ उस वक्त अगर आप देखें तो कीव में प्रो रशियन गवर्नमेंट उसे रन किया करती थी। तो उसमें आप पढ़ेंगे कैसे वो कह रहे हैं कि इसमें CIA का क्या रोल है, डेमोक्रेटिक पार्टीज, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रिपब्लिकन पार्टी, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, IRI वही NED की दोनों संस्थाएं हैं। वैसे ही आप देखें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, USAID, ये सब वो मेन एजेंसीज थे जिसके द्वारा ग्रासरूट कैंपेन रन किया गया और कीव को झकझोरा गया। यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो कई फंडिंग की गई यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस कंसल्टेंसीज डिप्लॉय किए गए, पोलस्टर्स, डिप्लोमैट्स, बिग अमेरिकन पार्टी, यूएस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके यूक्रेन को झकझोरे हैं। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। ऐसा नहीं है कि वी विल बी शॉक्ड, हमें मालूम है, वी आर नोइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम, हमें लंबे समय से ये मालूम है। ओनली थिंग इज कि अब ये जो डॉट्स हम तब से कनेक्ट कर रहे थे इसको बाकी जगहों से भी कंफर्मेशन आना मिलना शुरू हो गया है और भी कुछ फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह भी आने लगे हैं। तो इसकी कहानी शुरू कैसे होती है, तो उन्होंने जो कहा कि देखिए कहानी शुरू होती है 2018 में। 2018 में होता यूं है कि एक अनलाइसेंस्ड बस ड्राइवर, बेसिकली बस ड्राइवर था जिसके पास लाइसेंस नहीं था, उसने रैश ड्राइविंग की, 2 बच्चों की उसमें मृत्यु हो जाती है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश में लोग सड़क पे आ जाते हैं और नतीजन शेख हसीना को स्ट्रिक्ट ट्रैफिक लॉज रिलेटेड लॉज बनाने पड़ते हैं, यानी उनको एक्शन लेना पड़ता है। और इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटर समझने लगते हैं कि ये तो बड़ा, ये बाहर बैठे हुए लोग समझने लगते हैं कि भाई ऐसे तो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जा सकता है बाकी कार्यों के लिए भी। और इसमें वो ओवर टाइम इसी को अब पकड़ना शुरू करते हैं, टैप करना शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन आप अगर देखें तो ओवर टाइम इस प्रकार से जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स होते हैं इनको, इनके जो हुनर हैं इसको तराशा जाता है, इन्हीं के द्वारा। कैसे तराशा जाता है अभी समझाऊंगा, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो उनको ये जो बाहर की संस्थाएं हैं ये सिखाती हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आइडेंटिफाई करने होंगे जहां पे आप चक्का जाम करें, आप ट्रांजिट पॉइंट्स रोक दें, वही स्ट्रेटेजी आपको रखनी होगी जब आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार से ओवर टाइम बांग्लादेश में ये शिक्षा दी जाती है। नतीजन होता क्या है कि ये लोग और मजबूत होते जाते हैं। वैसे यहां सोचने वाली बात है, जब बात होती है स्ट्रीट प्रोटेस्ट की और ट्रांजिट पॉइंट्स को चोक करने की, तो ये तो भारत में भी हुआ था, जैसा आपको याद होगा। फार्मर प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसा प्रयास किया गया था, शाहीन बाग में भी कुछ ऐसा किया गया था। और यहाँ तो शारजिल इमाम जैसे भी लोग हैं जिन्होंने तो कह दिया था कि नॉर्थ ईस्ट को ही भारत से अलग कर दिया जाए, वो चिकन स्नेक वाली जो कहानी लेके ये आए थे। तो इस तरीके का गेम भारत में भी
हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी विदेश से ही करवाया गया होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ कॉन्क्रीट वाला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स हैं, आईबी के पास काफी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं। खैर बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों IRI ढाका में काफी सालों से काम कर रहा है, 2003 से काम कर रहा है, और वो तब से पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिविल सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सबके लिए काम कर रहा है, अगर आप उनकी माने, बांग्लादेश के इन सारे लोगों के भले के लिए। लेकिन हम सबको मालूम है NED की कोई भी संस्था हो तो किसके भले के लिए काम करती है। जस्ट लाइक यूएसएड भी आप जानते ही हैं बंद हो गया है, लेकिन किसी देश को जहां जहां फंडिंग कट हुई किसी ने नहीं कहा कि अरे हम क्या करें, फंडिंग कट हो गई, सब खुश हैं बला टली यूएसएड की। लेकिन वो अगर आप देखें तो वही मीडिया में दुनिया भर की पुट करवा रहे हैं इस प्रकार के न्यूज, यूएसएड की फंडिंग कट हो जाएगी, एजुकेशन का क्या होगा, हेल्थ केयर का क्या होगा। किसी भी देश के सरकार ने नहीं कहा कि हमें यूएसएड वापस दो, हम क्या करें, किसी भी देश के सरकार ने नहीं कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे कुछ उसी तर्ज की एक नई आपके लिए संस्था, हो सकता है आप में से कई लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल नई तो है नहीं, काफी फेमस है। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, इसके ये 4 सब्सिडरीज हैं। एक है अमेरिकन सेंटर फॉर इंटरनेशनल लेबर सोसाइटी, दूसरा सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज, तीसरा नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, और वैसा ही IRI इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये डेमोक्रेट्स चलाते हैं, ये रिपब्लिकन चलाते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें IRI की बात हो रही है। IRI दोस्तों इस प्रकार से कई प्रकार के अगर आप देखें तो इन्होंने वाइड रेंजिंग प्रोग्राम्स को फंड किया है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो NGOs को इन्होंने पैसे दिए, एक्टिविस्ट ग्रुप्स को पैसे दिए, पॉलिटिशियंस को दिए, यहां तक कि म्यूजिकल एंड विजुअल आर्टिस्ट को भी दिए, और इन सब से अनरेस्ट करवाया गया था बांग्लादेश में। पर्पस बड़ा क्लियर था, अगर शेख हसीना नहीं सुनेंगी तो इन सबको ट्रिगर किया जाएगा। यहां पे अब देखते जरा शुरुआत कैसे हुई है। दोस्तों 2019 की बात है, IRI ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। कारण क्या था, 2018 के दिसंबर में चुनाव होता है बांग्लादेश में, और शेख हसीना बड़े मार्जिन से वापस आती हैं। इसके बाद यूएस एक बात समझ जाता है कि शेख हसीना कहीं ना कहीं अब हटेंगी नहीं। तो इसके लिए दोस्तों कोई भी प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये लोग क्या करते हैं, जरा ये मॉडस ऑपरेंडाई हमें समझना होगा। 2019 में IRI ने एक रिसर्च किया जिसके द्वारा बेस लाइन असेसमेंट, ये शब्द का प्रयोग किया गया, बेस लाइन असेसमेंट बनाया गया कि बांग्लादेश की यथास्थिति क्या है, लोग किसको पसंद करते हैं, समाज में क्या क्लीवेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो सब आइडेंटिफाई किया गया, कौन हमारे लिए काम कर सकता है। तो बेस लाइन असेसमेंट कैसे हुआ, तो उसके लिए 48 ग्रुप इंटरव्यूज करवाए गए, 13 इंडिविजुअल इंटरव्यूज कराए गए, और 304 की इन्फॉर्मेंट इन टोटल उनके साथ हुआ। नतीजा ये हुआ, IRI स्टाफ ने आइडेंटिफाई किया 170 डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स जो कि कोऑपरेट करेंगे IRI के साथ टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश पॉलिटिक्स। उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट का आप पढ़ सकते हैं, ये रिपोर्ट आपको देखने मिलेगा। आइडेंटिफाइड ओवर 170 डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हु वुड कोऑपरेट विद IRI टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश पॉलिटिक्स। तो पर्पस बड़ा क्लियर था, यहां पे कोई लाग लपेट नहीं है, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करना था, उसके लिए ये बेसलाइन असेसमेंट किया जाता है। फिर यूएस गवर्नमेंट की रिजीम चेंज कैंपेन तेजी से एक्टिवेट होनी शुरू होती है। अब इसमें दोस्तों BNP से इनको बड़ी उम्मीद होती है कि शेख हसीना ना सही तो BNP कुछ करके देगी। उनको समस्या ये थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये प्रो चाइना ना हो जाए शेख हसीना, तो यहां पे BNP को बैठाया जाए। अब दोस्तों यहां पे IRI ने कंक्लूड किया कि देखिए BNP की जो इस वक्त अपोजिशन में है, उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने सक्सेसफुली सपोर्टर्स को मोबिलाइज वो नहीं कर पा रहे, और कहा कि ये पार्टी जो है स्ट्रीट मूवमेंट्स सक्सेसफुली फॉर्मेंट कर भी नहीं पाती है, और नतीजन ये मार्जिन में ही रहती है, अवामी लीग इसे ओवरशैडो करके रखती है। और इसलिए IRI ने ये कहा कि देखिए BNP से अकेले तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ BNP की आवश्यकता रहने वाली है, तो इसीलिए इनको भी अपने रिजीम चेंज के गेम में हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अकेले इनके भरोसे नहीं कर सकते, और भी लोगों को हमें इन्वॉल्व करना होगा। और यहां से उन्होंने प्रपोज किया एक रिजीम चेंज करेंगे जिसमें स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का रोल होगा। अब दोस्तों यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए BNP तो इनकॉम्पिटेंट है। IRI के ही इंटरनल डॉक्यूमेंट में ऐसा कहना है कि देखिए BNP के पास पॉपुलैरिटी ही नहीं है, यूएस गवर्नमेंट को ही इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी है, यानी जो आर्टिस्ट हैं, NGOs हैं, है ना, LGBT ग्रुप्स हैं, जो भी समाज है, उसमें हमें अपने खुद को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। और इसमें एक IRI रिपोर्ट ने तो ये भी सजेस्ट कर दिया, जब ये तब आया जब हो चुका था, शेख हसीना जा चुकी थी, कि अगर हमने $multi-million कैश इंजेक्शन नहीं किया होता तो आज भी BNP उसी साइकिल में फंसी रहती, जिसमें वो पहले वायलेंस करती, फिर चुनाव का बॉयकॉट करती, फिर लास्ट में चुनाव में पार्टिसिपेट करती, और लास्ट में देखते तो पूरी तरीके से हार जाती। तो वही साइकिल चलता रहता। लेकिन देखो हमने $multi-million कैश इंजेक्शन से कितना काम किया। यहां पे आप देखें
तो शेख हसीना के ही ड्यूरिंग हर टेन्योर यहाँ पे डोनाल्ड लू आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे शेख हसीना की पोर्ट्रेट भी है, मुजीबुर रहमान साहब की भी पोर्ट्रेट भी है। तो यहाँ पे डोनाल्ड लू का बड़ा रोल बताया जाता है। इनको कहा जाता है ये आर्किटेक्ट थे इस पूरे के पूरे चीज के, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट साउथ एशिया के लिए उस वक्त यही देख रहे थे। तो साउथ एशिया का जो स्टेट डिपार्टमेंट ही आईआरआई को भी यहाँ पे गाइड कर रहा था। तो इस तरीके से यूएसएड, आईआरआई और इन सब का इसमें बड़ा रोल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल उठता है क्लिंटन का क्या रोल रहा। देखिए उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं, उसके बाद कुछ अलग नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर आप देखें तो बीएनपी भी उम्मीद में थी, वो भी अपने लोगों को, कैडर को जमीन पे उतार देती है जब प्रोटेस्ट होता है। स्टूडेंट्स भी सो कॉल्ड उतरते हैं। उन स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी का रोल होता है। जमाते इस्लामी उनको फर्दर स्ट्रेंथन करता है और वो सब जमीन पे उतरते हैं। कैसे इन स्टूडेंट्स को मजबूत किया जाए, कैसे इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। कुछ लीडर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको यूएई और कतर इन सारे देशों में भेजा जाता है। लाइजनिंग के लिए पाकिस्तान आईएसआई का ऑफिशियल होता है। ये कहानी तो काफी समय से हम जान रहे हैं, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे क्लिंटन का क्या रोल है। देखिए हिलरी क्लिंटन के टेन्योर में, अब ये अगेन अमेरिकन जो अखबार है उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। उस वक्त यूनुस के खिलाफ शेख हसीना ने बांग्लादेश में करप्ट बिजनेस डीलिंग्स के लिए एक प्रोसिक्यूशन शुरू किया था, लेकिन बदले में यूनुस के ऊपर ऐसा ना किया जाए इसलिए शेख हसीना पे दबाव बनाया गया था। उसमें क्या किया गया था कि शेख हसीना के जो पुत्र हैं वो यूएस में रहते हैं, तो उनके ऊपर आईआरएस ऑडिट किया गया था। आईआरएस ऑडिट बेसिकली इनकम टैक्स ऑडिट है, जिसके द्वारा उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि आप या तो आपके बेटे के खिलाफ भी हम इसी प्रकार से एक्शन लेंगे, अन्यथा आप यूनुस के खिलाफ जो एक्शन ले रही हैं वो खत्म करें, और जो ग्रामीण बैंक के खिलाफ ऑफिशियल प्रोब है वो वहीं पर रोका जाए। ऐसे विकीलीक्स से कई केबल हैं जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं यूनुस के हिलरी क्लिंटन के साथ, यूएस ऑफिशियल्स के साथ, और कारण है कि उनका काफी फेवरेबल व्यू पॉइंट रहा है यूनुस के लिए, और शायद यूनुस ने भी क्लिंटन्स के लिए उनके लिए काफी पैसे डोनेट किए हैं। ट्रंप ने तो कहा भी था, वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय हु वांटेड टू सी मी लूज। और जाहिर सी बात है, जैसे यूनुस पावर में आए सीधा अपने मालिक के पास गए। आप देख सकते हैं क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में लीडर स्टेज में यूनुस गए हैं, अकेले नहीं है, साथ में अपने 2-3 आतंकवादी भी लेके गए थे। तो अब तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ चुकी है। यहां पे एक बड़ा ही थोड़ा अलग सा मुझे दिखा इस ग्रे जोन के ही डॉक्यूमेंट में, अगर आप देखें तो एक आर्टिकल है फरवरी 7 का ही, यानी अभी का है, व्हाई डिड रिपब्लिकन्स फंड ट्रांसजेंडर डांस इन बांग्लादेश। तो आपने सुना होगा, पॉडकास्ट में भी वो कह रहे हैं एलजीबीटी ट्रूप्स काफी बड़ा रोल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स का जो है उसमें यही कहना है कि यूएस फंडेड इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने गे एंड ट्रांसजेंडर पीपल पे काफी ज्यादा खर्च किया। उनका कहना है कि दे आर वेरी डिसरप्टिव एक्टर्स, दे आर वेरी इजी टू ब्रिंग टू स्ट्रीट्स। कारण है वो तुरंत प्रोटेस्ट करते हैं, वो पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं, तो उनको मैनिपुलेट करना आसान है रिलेटिवली, और इसीलिए इनको हम फंड करेंगे। और अगर आप देखें तो आर्टिस्ट और एलजीबीटी सभी में, थिएटर्स में, हर जगह काफी ज्यादा इन्होंने फंड किया। और अगर आप देखें तो काफी ज्यादा रैप्स वगैरह आ रहे थे अगेंस्ट शेख हसीना, आर्ट फॉर्म के रूप में, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को आक्रोशित करना शेख हसीना के खिलाफ, तो वो सभी हो रहा था। कारण था कि यूएस ने इस प्रकार से फंड किया था, और दे वर वेरी प्राउड कि देखो कहीं ना कहीं ये जो रैप्स वगैरह है हमारा आर्ट फॉर्म है, आज वही कारण बना शेख हसीना के लिए, तो हमारा ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टिस्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो यूएस की इसीलिए पैनी नजर बनी रहती है। तो आर्ट फॉर्म के थ्रू उनको मालूम है जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आर्ट फॉर्म का बड़ा रोल होता है लोगों को मोबिलाइज करने में। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको भारत से कनेक्ट करें तो आपको याद होगा भारत में भी ये खालिस्तान एक्टिविटीज जो पूरी की पूरी ट्रिगर की गई, इसको यूएस का इसमें बड़ा हाथ है। अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके लिए एविडेंस देने की आवश्यकता है, आप सभी शायद ये बात मानते होंगे। यूएस, कनाडा, इनका बड़ा हाथ रहा है। लाइकवाइज आप उनके द्वारा फंडेड जो म्यूजिक रहा है, पंजाबी आर्ट म्यूजिक जो रहा है, पॉप फॉर्म जो पंजाबी वर्जन रहा है, जो वहां से चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ भी म्यूजिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसमें किस प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं जरा ध्यान से कभी उनके लिरिक्स को सुनिए, जो पिक्चर्स, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस आते हैं उनको देखिए, उनसे भी आप ये जो प्ले है यूएस का आप समझ पाएंगे कि आर्ट फॉर्म को भी इन्फ्लुएंस करके लोगों के दिमाग पे किस प्रकार से एक प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाने वाला गेम चलता रहता है। खैर, अब जो भी है दोस्तों, इलॉन मस्क तो सुन रहे हैं। देखिए इससे पहले जब माइक बेंस ने सेम टकर कार्लसन पे यूएस एड का खुलासा किया था, इलॉन मस्क ने एफर्मेशन भी दिया था और उसके बाद डॉज यूएस एड के पीछे पड़ा था। इस बार वापस आए हैं माइक बेंस सेम टकर कार्लसन के पॉडकास्ट में, और इस बार वो एनईडी का खुलासा कर रहे हैं। और इलॉन मस्क ने कह भी दिया है, एनईडी इज अ स्कैम।
नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो क्या होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, हमारा यूपीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन हमने 13 फरवरी तक एक्सटेंड किया है। तो प्रीलिम्स 2026 24,999 में मिल रही है। मेंस 2026 तक का अगर आपको कोर्स लेना है तो केवल 26,999 में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2026 की यहाँ बात हो रही है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। इंडिया का हाईएस्ट क्वालिटी कोर्स विद मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस मिल रहा है इस कीमत पे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको हम दे रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा जीएस प्लस सीसैट हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है 7 फरवरी से। अवश्य जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, 11,999 में है। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं आपके लिए 2026 के लिए हम बनाए हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10।